علاقائی خبروں میں کہیں گے آپ کو خوشامدید، میں ہوں آپ کے ساتھ صبا شہزاد۔ بلٹن کا آغاز کریں گے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے میرپور خاص میں آٹے کے بعد چینی مافیا بھی متحرک ہو گئی۔ فی کلو چینی کی قیمت میں 20 سے 25 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ ذخیرہ اندوز ایک بار پھر سرگرم ہو چکے ہیں اور پرائس کنٹرول لسٹ پر عمل درآمد ہوتا بالکل دکھائی نہیں دے رہا۔ مہنگائی سے پریشان شہری ریلیف کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں انور بروہی کے ساتھ اس وقت اس رپورٹ میں۔ شوگر مافیا نے چینی کی قیمتوں میں یومیہ اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ چینی کی فی بوری کی قیمت 5,500 سے بڑھا کر 6,600 روپے کر دی گئی، جس کی وجہ سے چینی فی کلو 110 روپے سے بڑھا کر 135 روپے سے 140 روپے کر دی گئی۔ میرپور خاص میں پرائس کنٹرول کمیٹی غیر فعال نظر آنے لگی ہے۔ 15 سے 20 دن میں تقریباً 25 روپے کلو اضافہ ہو گیا ہے چینی کے اوپر۔ ہمارے یہ بچارے 300-400 دیہڑی کے کام کرتے ہیں، مزدور بندہ کیا کرے گا؟ پرائس کنٹرول کمیٹی کے درجنوں ملازمین اور افسران قومی خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے کے سبب ہوٹلوں پر چائے کا ایک کپ 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے کا کر دیا گیا۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر میرپور خاص سے چینی کی بڑھتی قیمت پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین مکیش کے ساتھ انور بروہی، جی ٹی وی نیوز، میرپور خاص۔ حاصل پور میں آٹا 130 سے 150 روپے فی کلو ملنے لگا۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے عوام بے حال ہیں۔ مزید جانتے ہیں سید انوار الحق سے۔ سید انوار الحق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ حاصل پور میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ آٹے کی جو قیمتیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی ایسا ہے کہ آٹا پاکستان کے اندر بھی مہنگا تو ہے، لیکن حاصل پور کے اندر سب سے زیادہ مہنگا ہو چکا ہے۔ حکومت سے ہماری اپیل ہے جلد سے جلد آٹے کا ریٹ کم کرے۔ شہری کا یہی کہنا ہے کہ گندم کے ریٹ میں کمی لائی جائے اور آٹے کی قیمتوں میں بھی کمی لائی جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت آٹا چکی مالکان موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ حکومت سے ساڈا مطالبہ ہے جی گندم سستی کی جاوے، اسی سستا آٹا بیچیے، گندم اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ ہم نے دکاندار سے جانا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ گندم کے ریٹ میں کمی لائی جائے تاکہ غریب آدمی بھی اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا آسانی سے کھلا سکے۔ جی احمد پور شرقیہ میں مرغی کے گوشت کی قیمت نے ایک مرتبہ پھر اونچی اڑان بھر لی ہے۔ چکن 700 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ اب مرغی کا گوشت بھی غریب شہریوں کی پہنچ سے باہر ہونے لگا ہے۔ مزید بتائیں گے آصف اوان۔ آصف اوان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں احمد پور شرقیہ میں، جہاں پر آٹا گھی چینی ڈالنے کے بعد آپ جو چکن کا ریٹ ہے وہ بھی 700 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت کوئی شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ بھائی بتائیے گا، چکن کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں بھی اضافہ ہونے کو دکھائی دے رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بھائی جان آئے روز مہنگائی ہے، ہم غریب کہاں جائیں؟ چکن کا گوشت 700 سے ابو ہو گیا ہے۔ غریب کو تو مٹن چکن کا گوشت بھی میسر نہیں ہو رہا۔ ہم افسران بالا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس مہنگائی پہ کنٹرول کریں۔ ڈی سی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، وزیر اعظم صاحب۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، شہری کا کہنا ہے کہ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے، لہٰذا حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کریں۔ جی جبکہ فیصل آباد کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف پہنچانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ سٹورز پر ضرورت کی اشیاء کی عدم دستیابی کے باعث خریداروں کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں عزیز بٹ سے۔ عزیز بٹ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے فیصل آباد میں یوٹیلیٹی سٹور پر ملنے والی اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے، تو فیصل آباد کے متعدد یوٹیلیٹی سٹور ایسے ہیں جہاں پر نہ تو آٹا دستیاب ہے، نہ چینی مل رہی ہے، اور نہ ہی دیگر جو ہے وہ دالیں جو میسر ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ اما جی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ صبح کے آئے ہوئے ہیں، نہ آٹا نہ چینی، صبح کے آ کے واپس چلے گئے، پھر آپ دوپہر کو آئے ہیں، پھر یہ کہہ رہے ہیں آئے نہیں، گاڑی خراب ہو گیا راستے میں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے اما جی کی بات سے ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ صبح سے یہاں پر کھڑی ہیں اور یہاں پر ان کو جو ہے وہ نہ تو آٹا ملا نہ چینی ملی ہے۔ حکومت سے ان کا مطالبہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں تو کم کر دی گئی ہیں، مگر ان کو یہاں پر جو ہے وہ پہنچایا جائے تاکہ یہ خریدار جو ہے وہ یہاں سے خرید کر اپنے گھروں کو لے جا سکیں۔ جی چین کا سی پیک اور نان سی پیک منصوبوں کے لیے نجی سیکیورٹی کمپنیوں پر عدم اعتماد۔ وفاقی حکومت نے نجی سیکیورٹی کمپنیوں کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی طرز پر نجی سیکیورٹی کمپنیز قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں بیورو چیف جی ٹی وی نیوز سہیل اقبال بھٹی۔ سہیل اقبال بھٹی، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیے، چین کی جانب سے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے اجلاس میں نجی سیکورٹیز کمپنیز کی کارکردگی کے حوالے سے شدید تفوضات کا اظہار کیا گیا، چونکہ مختلف نجی سیکورٹیز کمپنی کے افراد
सीपेक और नॉन सीपेक मंसूबों पर सिक्योरिटी की फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जिसके बायस अब वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर मंजूरी दी है कि अमरीका और बरतानिया की तर्ज पर निजी सिक्योरिटीज कंपनीज कायम की जाएंगी। जो मौजूदा सिक्योरिटीज कंपनी का स्ट्रक्चर है ये खत्म किया जाएगा, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं है और इस सिलसिले में कोई बाज़ाब्ता कोई कानून भी नहीं मौजूद। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की समरी पर नए कानून की बनाने की बाज़ाब्ता इजाज़त दी गई है और उसके साथ साथ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके जरिए से निजी सिक्योरिटीज कंपनीज अहल तरीन अफराद को भर्ती करेंगी और उसके बाद ऐसे मंसूबे जहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है वो वहाँ से हटा के प्रोफेशनल जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी उनके अफराद को वहाँ पर तैनात किया जाएगा और इस मकसद के लिए जितनी निजी कंपनीज के अंदर सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए अफराद को भर्ती किया जाएगा उनकी पहले वजारत दाखिला से उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाई जाएगी और उसके बाद वो खिदमात सर अंजाम देने की पाबंद होंगी। इसके साथ साथ निजी सिक्योरिटी कंपनीज को पाबंद किया जाएगा कि वो आलमी मेयार के मुताबिक न सिर्फ इक्विपमेंट खरीदें बल्कि उसके साथ साथ जिन मंसूबों के ऊपर उनकी डिप्लॉयमेंट होगी उसके हवाले से इनकी कैटेगरीज बनाई जाएंगी ताकि अगर कोई सीपेक का मंसूबा है तो जो टॉप प्रायोरिटी की सिक्योरिटी कंपनीज होगी वहाँ पर वो सिक्योरिटी फ्राहम करेगी और दीगर ऐसे मंसूबे जो नॉन सीपेक है ताम चाइनीज कंपनियां वहाँ काम कर रही हैं उसके मुताबिक कैटेगरी बी और सी की कंपनी वहाँ पर सिक्योरिटी की सर्विसेज फराहम कर सकेंगी। जी, अहम तरीन भर्तियां अमल में लाई जाएंगी। सुहेल इकबाल भट्टिया में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। MQM पाकिस्तान के सिंध असम्बली में अपोजिशन जमातों से मामला तय पा गए हैं। MQM पाकिस्तान की सिंध में अपोजिशन लीडर लाने की तैयारी मुकम्मल। आज शाम 4 बजे MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी का बहादुराबाद में इजलास तलब कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची शाहनवाज बलोच से। शाहनवाज, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से MQM पाकिस्तान की जानिब से सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर लाने की तैयारी की जा रही है और MQM की जानिब से तमाम अपोजिशन जमातों से बातचीत जो है मुकम्मल हो गई है। अब MQM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली में अपना अपोजिशन लीडर लाने की तैयारी वो मुकम्मल की है और नामों को आदमी शक्ल की अपोजिशन लीडर के लिए 2 नामों की जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है जिनमें अली खुर्शीदी और राना इफ्तिकार शामिल है। और इसका मकसद ये है कि जो अब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है तो निगरान सेटअप के लिए अब मुतहदा की कोशिश होगी कि उसमें उसकी मुशावरत शामिल होनी चाहिए। जो निगरान सेटअप होगा जो आम इंतखाबात करवाएगी सिंध में, तो इसके लिए मुतहदा अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहती है। तो MQM की पूरी कोशिश थी, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इस पर मुकम्मल तैयारी कर रही थी, तो अब बिल आखिर वो इसमें कामयाब हो गई है, अपोजिशन जमातों को मनवाने में कामयाब हो गई है। अब MQM की जानिब से अपना अपोजिशन लीडर लाया जाएगा जिसके लिए आज MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद में इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है। अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं। शाहनवाज बलोच हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जलालपुर पीरवाला में अंजुमन पटवारियान और क्लर्क की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल का सिलसिला जारी है। पटवार और क्लर्क की जानिब से दफातर को ताले लगा दिए गए। हड़ताल के बाद साइलिन को शदीद मुश्किलात दरपेश है। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबाई हुकूमत और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऐसा कोई फैसला कबूल नहीं किया जाएगा जिससे पटवारियों के मफादात पर असर पड़े। जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हड़ताल और धरनों का दायरेकार वसी कर दिया जाएगा। जहलम में तनख्वाहों में इजाफे और लीव इनकैशमेंट के नोटिफिकेशन की वापसी के लिए बल्दिया के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने दफातर को ताले लगाकर धरना दे दिया है। मजीद जान लेते हैं मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। मिर्ज़ा जवेर इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज ज़िला जेलम में भी एहतजाज शुरू हो चुका है। बल्दिया के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने आज तालाबंदी करके एहतजाज शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ बल्दिया के मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एहतजाज की वजह क्या है। जी सर बताइएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी किया है, हमारा मुताबिक इसको फिल फॉर वापस लिया जाए। नहीं, जो हमारी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं 30%, जबकि बाकी वफाक और सूबों में 35% जारी स्टेज पे है, हमारी नेशनल स्टेज पे है। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी जो बेसिक है वो जो बढ़ाई गई है नेशनल स्टेज की बजाय बेसिक स्टार्ट पे बढ़ाई जाए। यहाँ पे मुलाजमीन का कहना है कि एहतजाज जोन है अभी यहाँ पे जेलम की सड़कों पे किया जा रहा है। हमारे मुतालबा ना पूरे हुए तो ये एहतजाज लाहौर की सड़कों पर भी होगा। विहाड़ी में रेवेन्यू मिनिस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन की कलम छोड़ हड़ताल जारी है। मुलाजमीन ने तमाम दफातर को ताले लगा दिए। आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं AD फराज से। AD फराज, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, रेवेन्यू वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल जारी है। तमाम दफातर को ताले लगा दिए गए हैं। मेरे साथ वेलफेयर एसोसिएशन बिहाड़ी के सदर मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। ये हड़ताल का आपका मकसद क्या है और हुकूमत पंजाब से आपका क्या मुतालबा है? पंजाब में जो ये दोहरा सलूक किया गया है, हमारी लीव एनकैशमेंट, पेंशन और हमारी तरक्की, ये सारे मामलात बिल्कुल गवर्नमेंट का ये गलत हुक्म है, गलत इक़दाम है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो हमारे मुतालबात हैं जब तक तस्लीम नहीं किए जाते, हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। जो पेंशन है, तरक्की है, वो अलाउंस बढ़ाए जाएं। हाँ, पंजाब हुकूमत सुतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। जी, कोट अद्दू का टीपी लिंक कैनाल से मुंसलिक मुल्तान रोड 50 फीट नहर बुर्द हो गया। एग्रीगेशन अमला कटाव को झाड़ियों और बांसों की मदद से बंद करने में मसरूफ है। मजीद जानते हैं न्याज अहमद से। न्याज, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटदू टीपी लिंक कैनाल मुल्तान रोड पर। टीपी लिंक कैनाल का जो कटाव है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। 50 से 55 फुट तक जो है कटाव जो है अब शुरू हो चुका है। इस कटाव को रोकने के लिए जो है बांस और झाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर साथ ही चंद गज़ के फासले पर जो है दर्जनों जो है बस्तियाँ हैं। किसी वक्त भी ये कटाव जो है शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तो महकमा जो है आपाशी और महकमा जो है हाईवे से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर ये कटाव को जो है जल्द और जल्द रोका जाए, क्योंकि ये किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। जी, कसूर के मकाम पर दरियाए सतलज की सतह में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया में पानी की सतह 25 फीट से तजावुज़ कर गई। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। ज़मीनी राबता मुनक़ता होने मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं वसीम अख्तर से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम कसूर दरिया सतलुज के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया सतलुज की बात की जाए तो दरिया सतलुज में पिछले 35 साल रिकॉर्ड टूटा है। इस टाइम दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मुकाम से 1,21,000 क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर रहा है। अगर दरिया की गहराई की बात की जाए तो 25 फुट से तजावज़ कर चुकी है। दर्जनों देहात हैं जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। यहाँ पे लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पे मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अगर ज़िली इंतज़ामिया खासी मुतहरक नजर आती है। डीसी कसूर की जानिब से दूसरे अजला से भी मशीनरी मंगवा ली गई है। डीसी कसूर का कहना है कि 5,000 लोगों को जो महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 70 के करीब इस टाइम रेस्क्यू की जो कश्तियाँ हैं वो रेस्क्यू के अमल में हिस्सा ले रही हैं। दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा देखने में नजर आ रहा है। जी, कहोड़ पक्का के मकाम पतन महारा पर दरियाए सतलज में पानी की सतह बुलंद होने लगी। पानी तेजी से मकामी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आने से तबाही से दो चार हो गई। मजीद जानते हैं चौधरी अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए सतलुज का जो पतन है, पतन महारा, वहाँ पर इस वक्त यहाँ की अगर सूरत हाल देखी जाए तो दिन ब दिन पानी की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही है। इस वक्त यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, मज़ीद हम उन्हीं से जानते हैं। हमारे पास जो है बस यही रेस्क्यू वाले आए हैं, बाकी तो कोई महकमा नहीं आया। जी बिल्कुल, इलाका मकीन मौजूद हैं तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर रेस्क्यू 1112 के अलावा किसी भी किस्म के कोई महकमा के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर नहीं आए। पानी के बहाव की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, तो यहाँ पर ना तो मेडिकल कैंप कोई लगाया गया है और ना ही महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें यहाँ पर पहुंची हैं। उन्होंने मुतालबा किया डिप्टी कमिश्नर से कि इस बात का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। जी, दरियाए सिंध में पानी के बहाव में इजाफे के बायस जहां खुश्क साली का खात्मा हुआ है, वहीं मकामी अफराद का रोजगार भी शुरू हो चुका है। पानी की फरावानी से आबादगार, काश्तकार और मछेरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मजीद जानते हैं कोटरी बैराज पर मौजूद अपने नुमाइंदे आमिर जैदी से। आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में जो है पानी के भाव में इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के कोठी बैराज पर, जहाँ पर जो है दरियाए सिंध का जो पानी है वो इस वक्त 65,000 क्यूसिक अप में और डाउन स्ट्रीम में जो है 25,000 क्यूसिक पानी चल रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक मकामी यहाँ के मौजूद है, हम इनसे मालूम करते हैं कि पानी आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं और इससे क्या फायदा हो रहा है। पानी आने से बहुत खुशी हो रही है। किश्ती वाले सारे कारोबार कर रहे हैं, इनके बच्चों का रोजगार खुल गया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पानी आने के बाद जो है वो आबादकार भी खुश हो गए। इसके अलावा कश्ती बांध जो है वो कश्तियां अपनी लेके जो है दरियाए सिंध में आ गए। दरियाए सिंध का जो पानी है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। 80,000 क्यूसिक पानी तक जो है दरियाए सिंध में नॉर्मल तौर पर चलता है। जी,
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे ऑनलाइन इस वक्त हवाले से ऑनलाइन लोन ऐप्स के हवाले से FIA की बड़ी पेशरफ सामने आई है। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन हसन बट ने नोटिस लेते हुए साइबर क्राइम विंग से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैसल अब्बास से। फैसल, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये जो एक अफसोसनाक रावलपिंडी के अंदर वाकया पेश आया कि एक ऑनलाइन ऐप के जरिए एक शहरी ने वहां से कर्ज लिया और फिर उसके बाद वो ऑनलाइन ऐप जो है वो शहरी को मुसलसल ब्लैकमेल करती रही और उसने खुदकुशी कर ली। इस हवाले से जो है वो डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन बट ने नोटिस लिया है और उन्होंने इस वाकये में मुलव्वस जितने भी अनासर हैं उनको जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जो हैं वो भी जारी कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि जितने भी FIA के तमाम तर वसाइल हैं उनको बरूकार लाया जाएगा और मुल्जिमान की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। लोन के नाम पर शहरियों को हिरासत करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी जानिब साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी जो है उसने मुतासरा मौसूल होने वाली कॉल पर जितनी भी तहकीकात हैं उन तहकीकात का आगाज कर दिया है जो उस शहरी को जाती रही। और दूसरी जानिब लवाहिकीन की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त पर इंस्पेक्टर बदर शहजाद इंक्वायरी कर रहे हैं और ये इसमें जितनी भी तहकीकात हैं उन तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है। जी, मुल्ज़िमान के जल्द गिरफ्तारी के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। फैसल अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर के इलाके थाना गुलबर्ग की हदूद में कत्ल का ड्रॉप सीन। बेटी ने शोहर के साथ मिलकर बाप को कत्ल किया। दूसरी कार्रवाई के दौरान थाना पशखरा की हदूद में सोशल मीडिया पर सरगर्म 9 सरबाज ग्रुप भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर से अब्दुल करीम की ये रिपोर्ट देखिए। पेशावर में पैसों ने खूनी रिश्तों को बुला दिया, औलाद बाप की कातिल निकली। थाना गुलबर्ग की हदूद में 3 दिन कबल एक शख्स वाजिद हुसैन को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस ने वाकये में मुलविस मकतूल की बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया। PTV के कैमरामैन का कत्ल हुआ था और बड़ा बेदर्दी से कत्ल हुआ था उनके अपने घर में या नूर स्ट्रीट में। 2 दिन के अंदर अंदर उन मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया, आला कत्ल भी बरामद हो चुका है उसमें। दूसरी कार्रवाई थाना पिश्तखरा की हदूद में की गई, जहां सोशल मीडिया पर दोस्ती करके लोगों को अगवा करने वाला गैंग पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसने वही जदीद साइंसी एज वेल एज ह्यूमन इंफॉर्मेशन पर काम करते हुए ये इस गिरोह को मर्दान से गिरफ्तार किया। SP कैंट के मुताबिक दीगर जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी है। सहाफ़ी मुसरतुल्लाह जान पर हमला करने वाले 2 मुल्जिमान भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची के इलाके मोमिनाबाद के करीब घर में सिलेंडर धमाके से बच्ची और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा कराची सौलत जाफरी से। सौलत, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखें, अब से कुछ देर कबल मोमिनाबाद तैयबा मस्जिद के करीब घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में बच्चों और खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों की शनाख्त सरबरा मजहर के नाम से की गई, जबकि अहलिया शहनाज और 2 बच्चे जिसमें 3 साल अंसर और 2 साल रुखसार शामिल हैं, जबकि इनके एक रिश्तेदार तारिक वो भी इस वक्त घर में मौजूद है जिस वक्त धमाका हुआ है। तमाम जख्मियों को अस्पताल में किया गया है, जबकि पुलिस और दीगर काम करने वाले इदारों की जो है वो उस वक्त जो है वो पर मौजूद है। जी, जख्मियों को बर्न सेंटर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सौलत जाफरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्वात में पानी के तनाज़े पर गोलियां चल गई। इलाका कोटलई कबल में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। पेशावर रिंग रोड पर पुलिस नाके पर गाड़ी ना रुकने पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 1 शख्स जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। फायरिंग से जाम बहक होने वाले शख्स का ताल्लुक दर आदम खेल से है। जख्मियों को LRH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ योब बलूचिस्तान में वतन अजीज़ का दिफा करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले शिकारपुर के रिहायशी फ़ौजी जवान मोहम्मद यूसुफ बलोच की नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा कर दी गई। तदफीन में आला फ़ौजी हुकाम और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाक फ़ौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई।
गुज़िश्ता रोज़ जो बलूचिस्तान में वतन अजीज़ का दिफा करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले शिकारपुर के रिहायशी फ़ौजी जवान मोहम्मद यूसुफ बलोच की नमाज जनाजा आबाई गांव में अदा कर दी गई। तदफीन में आला फ़ौजी हुकाम और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाक फ़ौज के दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की और कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। नौशेरा से खबर शामिल करेंगे। नौशेरा में ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी के साथ साथ शहरियों की खिदमत में मसरूफ़ है। ट्रैफिक एहलकार की जानिब से शदीद गर्मी से निजाल शहरियों के लिए ठंडे शरबत और पानी का इंतजाम कर दिया गया। देखते हैं मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। ये है नौशहरा का ट्रैफिक एहलकार आसिम, जो रोजाना सुबह ड्यूटी पर आते ही कचहरी चौक के मुकाम पर कूलर में ठंडा पानी और ठंडा मीठा शरबत बनाकर रख लेता है, जिससे आग बरसाती गर्मी के सताए मुसाफिर और राह चलते अफराद मुस्तफीद होते हैं। शहरी भी ट्रैफिक एहलकार की इस काविश को खूब सराहते हैं। ये जो इकदाम इसने किया हुआ है ये बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह हर बंदे को चाहिए कि इस तरह करे, क्योंकि अभी जो है ना गर्मी की जो है ना लो भी है और बहुत शदीद किस्म की जो है ना तपिश है। जो वेफर ये कर रहे हैं ना मुश्किल है कोई कर सके यहाँ पर। ट्रैफिक एहलकार का कहना है कि वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ रब की रजा और खुशनुदी के लिए मुसाफिरों और राहगीरों को पानी और शरबत पिलाता है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। दिसंबर 2018 से मई 2023 के दौरान 1153 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरी की गई। नूर आलम खान के चेयरमैन बनने के बाद अब तक 556 अरब 52 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। मजीद जानते हैं सौले अब्बासी से। सौले, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बिल्कुल मौजूदा जो कौमी असम्बली है उसकी मुद्दत खत्म होने जा रही है और उसी हवाले से जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी कारकर्दगी रिपोर्ट भी सामने आना शुरू हो गई है। और दिसंबर 2018 से मई 2023 के दौरान PAC ने 1153 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी की। इस दौरान 12,741 ऑडिट पैराज डिस्कस किए गए। नैब को 119 और FIA को 94 ऑडिट पैराज मुंतकिल किए गए। इसके अलावा 3,839 पैराज और 721 ग्रांट्स जो है वो सेटल की गई। जबकि नूर आलम खान की चेयरमैन PAC बनने के बाद की जो कारकर्दगी है उसका अगर जायजा लें तो जनवरी 2022 से मई 2023 के दौरान 556 अरब 52 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। इस दौरान 600 ऑडिट पैराज जो है वो डिस्कस किए गए। 34 ऑडिट पैराज FIA को भिजवाए गए, जबकि 145 पैराज और 73 ग्रांट्स जो है वो निपटाई गई। इसके अलावा नूर आलम खान के दौरान जो है वो 20 केसेस नैब को भिजवाए गए। अहम केसेस भी PAC में जेर बहस लाए गए, जिसमें जो है वो मोटरवेज पर प्रोटोकॉल के सबब जो मोटरवेज की बंदिश थी उसके मुस्तकिल खात्मे की हदायत की गई। रेड जोन में जो सिक्योरिटी का मसला था उसको जेर बहस लाया गया। जो साबका दौर में $3 अरब जो है वो कर्जा दिया गया बिला सूद, उस पर जो है वो तहकीकाती कमेटी बनाई गई। इसके अलावा भी दीगर 31 के करीब जो मसाइल थे उनको PAC में जेर बहस लाया गया और उनको या तो उनकी तहकीकाती कमेटी बनाने की हदायत जारी की गई या फिर उसको PAC ने जो है वो उन मसाइल के सदेबाब के लिए हदायत जारी की। तो ये PAC की अभी तक कारकर्दगी है जो सामने आ गई है और मजमूई तौर पर 2018 से लेकर मई 2023 तक 1153 अरब रुपए से ज्यादा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रिकवरी करवाई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सौले अब्बासी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए बुद्ध भक्षुओं के वफ़द ने टेक्सला म्यूज़ियम और धर्मा राजिका साइट का दौरा किया। मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल और साउथ कोरिया समेत दीगर ममालिक से आने वाले वफ़द ने म्यूज़ियम में रखे गए कीमती नवादरात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर म्यूज़ियम के अफसरान ने वफ़द को मकाम की तारीख़ी और आसार क़दीमा की अहमियत से भी आगाह किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।